آداب ناظرین خبرنامہ گزیک شمار حدبتوز خدمت مز ریاض احمد حاضر خبرنامہ تو تام واتنس مز تعاون کران لذت مسال پیش خبر تفصیل سان جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہندس ایوانس مز آئی وری 2019 پتہ بے روزگاری ہز شرح حکومت طرف واریاہ کم قرار دت اعداد و شمار پیش کرنا مبارک احمد گل سند طرف پرسنہ آمتس سوالک جواب دت وون زراعت دیہی ترقی تو پنچایت راجک وزیر جاوید احمد ڈارن اعداد و شمار پیش کرت زی وری 2019-20 مز بے روزگاری ہز شرح 6.7 ریکارڈ کرنا آمت یل زن وری 2023-24 مز امچ شرح 6.1% روز تمو وون زی لیبر فورس پارٹیشن ریٹ تو ورکر پاپولیشن ریشوس مز تہ واریاہ بہتری درج سپزمز یس 64.3 تو 64.4% تام واچ یم سۭتۍ حکومت چہ پالسین مز کامیابی نظر گژھان جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن تو جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ ذریعہ پورٕ کرنہ آمتین ومیدوارن ہند اعداد و شمار پیش کرت وون تمو زِ 2023-24 مز آئی 1597 ومیدوار انتخاب عمل مز ان تو ات پہ آو مبارک احمد گل سند طرف حکومت اعداد و شمار تو سروے رپورٹ متضاد قرار دت سوالات کھڑا تل کرنے یت پہ وزیر موصوفن سرکار طرف ضروری اقدامات تلنچ یقین دہانی کر وہ ڈکریز ہو گئی ہے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے 2024-24 میں 6.1 ہے جو 2019-20 میں 6.7 تھا لیکن جو ہمارے پاس فگرز ہیں یہاں ریاست جموں کشمیر میں ان امپلائمنٹ زیادہ بڑھ گئی ہے یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں جو چیزیں میں نے دیکھی کہ ایک تو ان نیسیسری جو پوسٹ ریفر کیے گئے ہیں ایک پوسٹ بھی ریفر کیا گیا ہے اس سے ایک تو ریکروٹمنٹ بورڈ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اگر ایک پوسٹ کو ہم ریفر کریں گے 100 پوسٹ بھی ریفر کریں گے ایک ہی ٹائم ضرورت ہے جوان ہزاروں کی تعداد میں ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے میرے خیال میں پہلے یہ سوچنا چاہیے جب پوسٹ 5 سے زیادہ ہو 10 ہو پھر ریفر ہو جائے ایک تو یہ دوسرا جو انہوں نے اسکیمیں کافی بتائی اس میں یہ اسکیم ہے جوانوں کے لیے یہ اسکیم ہے ہماری بہنوں کے لیے یہ اسکیم ہے لیکن اس کی اویئرنیس نہیں ہے جب تک آپ اس کو گراؤنڈ میں اویئرنیس نہیں کریں گے اس اسکیموں کو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ رسپونڈ کہ ابھی ہماری جو پرانی گورنمنٹ تھی عمر صاحب کی سرکار تھی پرانی ہم نے اس میں ایک اسکیم رکھی تھی بے روزگار نوجوانوں کے لیے منتھلی پینشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت سارے بے روزگار نوجوان ہیں جن کو کچھ نہیں ملتا ہے اپنے جیب خرچ کے لیے وہ ہم نے رکھا تھا کہ میرے خیال میں وہ پھر لاگو کرنا پڑے گا کیونکہ گریجویٹ کے لیے 2000-3000 جو پوسٹ گریجویٹ ہے اس کے لیے 4000 جو ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بیکار ان کے تاکہ اب ان کا بوجھ جو ہے اب روزمرہ اخراجات ہوئے اور چوتھا میں چاہتا ہوں ریسپونڈ کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ کیرلا اسٹیٹ میں ہے بہت سارا پیسہ آتا ہے وہاں اتنا پیسہ سرپلس آتا ہے منتھلی کہ وہاں ایک اوورسیز کارپوریشن ہے لیکن یہاں کے نوجوانوں کے لیے وہ نہیں ہے سعادت میری گزارش ہوگی اس پہ یہ کام کرے یہاں کے نوجوان جو باہر جانا چاہتے ہیں یورپین کنٹری میں جانا چاہتے ہیں عربین کنٹری میں جانا چاہتے ہیں گلف میں جانا چاہتے ہیں یا کسی اور کنٹری سے نیبرنگ کنٹریز میں کسی جگہ بھی جانا چاہتے ہیں اس کے لیے اگر یہ سوچیں گے اوورسیز کارپوریشن کا بھی اگر ان کے پاس ہوگا اس میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ مجھے بتائیں تاکہ میں دوسرا جو ہے سپلیمنٹری دوسرا بتاؤں ان سالوں میں کافی حد تک جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ریفر کیے ہیں SSRB یا PSCs کو اس کے علاوہ جو ہماری سینٹرل اسپانسر اسکیمز ہیں جو امپلائمنٹ کے حوالے سے ہیں اگر آپ اجازت دیں سے میں تھوڑا سا پڑھ لوں کیونکہ یہ کافی لکھا ہوا ہے جواب ہے انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا اس میں ساری ڈیٹیلز ہم نے دی ہیں یپر تل جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہندس اجلاس دوران سجاد شاہینن ڈوڈا میڈیکل کالجس مز بنیادی ڈانچہ کمی ہند معاملہ یت پہ صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون تمن سرکار طرف تلنے اقدامن ہند حوالہ بابت کرت وون زِ امیک بنیادی ڈانچہ بڑھاونہ سان سرکار عملچ کمی پور کرنے باپت اقدامات تلنس ترجیح دیوان تاہم صحتک بنیادی ڈانچہ مضبوط کرت عوامس بہتر طبی سہولت آیتن کرنے باپت سرکار وعدہ بند جو ہاسپٹل ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے ریزیڈینشیل کوارٹرز جو ہیں وہ بھی انکمپلیٹ ہے وہ ہماری گزارش ہے کہ ان کو جلدی کمپلیٹ کرا دیا جائے خالی ہیں اگر
इन्होंने सी पार्ट का जवाब पढ़ा होगा, उसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ये पोस्ट जो हैं ऑलरेडी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उनको रेफ़र किए गए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ इन टच है कि जल्द से जल्द इन पोस्ट को क्लियर करके ताकि ये जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिल किया जाए। दूसरा इन्होंने कहा है कि ये जो पीजी या एमडी चलाने की बात वहाँ पे शुरू की गई है, वो 2008 उसका टाइम दिया है, पीजी एमडी एमएस कोर्सेज़, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि जब तक ये सारे कुछ तैयारी करनी है 2008 में ही हो सकता है। कोशिश करेंगे अगर उससे भी पहले पॉसिबल हो सका तो उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। अभी जो टीचिंग जो हॉस्पिटल है वो भी इनकम्प्लीट है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो है वो भी इनकम्प्लीट। नजरीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन तो मेंबर असम्बली सजाद गनी लोनन जम्मू कश्मीरस मज रिजर्वेशन किस मामलस पे इंकिशाफ बावान राह खोलमुत मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार तो मरकजी सरकार रलित मिलित हंद नौजवान सत नाइंसाफी वर्ताव साजिश करान। श्रीनगर मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान तमो इंकिशाफ बोमुत रिजर्वेशन पॉलिसी बनवित मज आबादी तनाजुर नजर तल थावन बजाय जमिस मज अमि शरह बढ़वित येतकन तालीम याफ्ता नौजवान सठा नाइंसाफी करने कोशिश सपदान, यम किन इन वालिस वक्तस मज सिविल सेक्रेटरीस सान दोयमन सरकारी दफ्तरन मज कशीर हिंदन अफसरन तो मुलाजमन हिंद बजाय बैरून रियासती मुलाजमन हुंद इंतखाब सपद। तमो अत मामलस पे यकजा सपदित इकदाम तुलने जरूरत व्यसलमज कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो है, जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन है, एससी 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब अब जो हमने डेटा मिला 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। एसटीपी पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी है। ओबीसी 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। एएलसी जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। आरबीए 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर है। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व होते हैं, उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, it is not competence, they are most competent. जम किस सतवारी चौकस मज ज़ेर तालीम फ्लाईओवर किस जदस मज इन वालन दुकानन हिंदो मालिको एहतजाज करित राह खोलमुत युदवई नई बस्ती बाजार एसोसिएशन हिंद मुतासर दुकानदारन इंतजामिया तरफ मुआवजा रंग दोयमि जाय दुकान बनावनुक यकीन दिनाव। तति दुकानन हिज सबील यकीनी बनावन ब्रोह तिहिंद दुकान खाली करनिच इंतजामिया तरफ तिमन चेनवन दिनामज। ये जन दोयमि जाय कारोबार खड़ा सपदन पत इंतजामिया तरफ दुकान खाली करनुक तिमन वाद ओस दिनामुत। अत सिलसिलस मज सोजना आमच नोटिस पत ताजरन कहिया परेशानी बुथ युन खदश लाक सपदान तो मुजाहरीन अमि हवाले इंतजामियास हंगामी बुनियाद पर इकदाम तुलने अपील करान। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, उसमें हमारे एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन
हमारे सुनील शर्मा जी, उन्होंने ये आवाज़ 36 दुकानों के लिए विधानसभा में भी चलाई है। एक फाइल जो सीएम हाउस में पड़ी हुई है, जिसमें माननीय उमर अब्दुल्ला साहब का कंसेंट चाहिए, उसमें कोई रुकावट के कारण एडमिनिस्ट्रेशन ये जगह हमें फ़िलहाल अलाट नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला सरकार से, चीफ मिनिस्टर साहब से एक विनती है इन गरीब लोगों के लिए हाथ जोड़ के कि इनको जल्द से जल्द जो आपके टेबल पे जो फाइल पड़ी है उसको दस्तखत करके इन लोगों का जो जीवन है थोड़ा सा ठीक कीजिए कि इनके जो बच्चे हैं जो इस दुकान से जो शाम को कमाते हैं और सुबह कमाते हैं और शाम को जो इनके घर का खर्चा चलता है, इनके माता पिता की दवाई चलती है, इनका अपना खर्चा चलता है, इनके बच्चे इन छोटी छोटी दुकानों से पलते हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कि सरकार लोगों के लिए फ़ायदा करती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, कि सरकार जो है वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और लोगों को बर्बाद करते हुए वो सरकार कैसे देख सकती है। इसलिए मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़ के विनती है कि इन दुकानों को जल्द से जल्द वहाँ पे चिन्हित करके इनको बनाने का वहाँ मौका दीजिए। चौडरकी बुगाम इलाकस मज आय 27 वुहरिस मोहसिन अहमद खान सज लाश पन्ने गर पुर असरार हालतस मज बरामद करने, येमे पत पुलिस तरफ मौकस पे यथ लाश पन्निस तहवीलस मज निन आय। अत सिलसिलस मज आय पुलिस तरफ लाश हुंद पोस्टमार्टम करने पत लाश आखिरी रसूमातो मूजूब लवाकिन सुपुर्द करने। ताहम खदश बावन से मोहसिन अहमद नावक नौजवान शायद पान पानस फांसी दित जिंदगी हुंद खात्म कोर्मुत। पुलिसन मजीद तहकीकात जारी थवित मामला दर्ज कोर्मुत। ताहम आव जांबाग सपुदमुत नौजवान आखिरी रसूमात आबई इलाकस मज अदा करने पत सुपुर्द लहद करने। जिला बंडपुर के सदरकूट बाला इलाकों लूको शिकायत बमज श्रीनगर बंडपुर रोडच हालत खस्ता आसने किन मुसाफिरन रंग रंग मुश्किलात परेशानी हुंद सामना करन पेवान। लूकन हुंद वनुन छु जे इलाकस मज सड़कें नख नाकिस ड्रेनेज सिस्टम आसने किन सड़कें हालत वारिया ज्यादा खस्त सपजमज, यम किन वत पकवन इंसान गाड़ी वालें ति वारिया मुश्किलात बुछ सपदान। अत सिलसिलस मज जोदवे इलाके केन लूकन हिंद मुताबिक कहिया लट मुतलक इंतजामिया सत अमि हवाल रब्त कायम करना आव, तति छन इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुताबिक कां ति संजीदगी बावन यिवान, यम किन तिमन रंग रंग मुश्किलात वेतरन छ पेवान। अत सिलसिलस मज छ तिमो मुतलक इंतजामियास हंगामी बुनियाद पर इकदामात तुलनच अपील करमज। क्या मसला क्या प्रॉब्लम आब दोहे गसान खराबी वती बना पकन यूज आब सारा 10 मुश्किलात बना वती पकन पकान मस्तूरात गाड़ी वाड़ी मतलब कने नीर जख्मी गसान लूक वत बना पकुन आब गो जमा गवर्नमेंट मतलब फैसला निवान डिसीजन निवान क्या गुजारिश यह गोस मतलब ये गो ड्रेन सिस्टम गसन वन गो न मसला हल कहें गो नम कथे खेवान दस्ती ड्रेन सिस्टम मस्तूरात कहीं बह वसादत वन तुह ये कत तुम वो कूत मुश्किलात अत कर इंतजाम गुजारिश करो ये ड्रेन सिस्टम या कह करो मगर अम कुन ध्यान दिवान अस मुश्किल ग सान बुजुर्गन हेकान सहर टाइमस नमाज गसित शामन हेकान गसित बच्चे ने हेकान स्कूल नीरित अपर हेकान नागस पे गसित अस कर मेहरबानी कर इंतजामिया अत दियो तुम नजर अत कूत आब अत जमा जन पकान मानसरो मज क्या गुजारिश वो क्या ये गुजारिश अत करो तुम कह इंतजाम युत हेको पकित अपर सड़क वन असल पे मगर आब गोस अतस रोजन कहीं। नाज़रीन खबरनामुक सिलसिला जारी है तिमो तिजारती वक्फ तो सपद बे मुलाकात और वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। नूर से भरी शामें, इबादत का सुकून और सोना जो बढ़ाए शान शौकत। UR ज्वेलर्स लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल। रमजान की रोशनी में चमकेगा हर लम्हा। 7 रमजान से 22 रमजान तक नए कलेक्शन पर शानदार डिस्काउंट्स, एक्सक्लूसिव डिजाइन्स और फ्रेश अराइवल्स पर खास रमजान करीम डिस्काउंट। तो इस रमजान करीम करिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट विद ओनली एट UR ज्वेलर्स, काट कदल, नालिमर रोड। फर्श फुरूश की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, बारी कार्पेट्स।
माह सियाम के मौके पर आपके लिए लाए हैं कारपेट्स, कर्टन्स, वॉल टू वॉल, फ्लोरिंग और ब्लाइंड्स वगैरह पर खुसूसी रियायत की सौगात। तशरीफ लाइए बारी कारपेट्स और अपने घर की रौनक में चार चांद लगाइए। बारी कारपेट्स, एमए लिंक रोड, मुनव्वराबाद, श्रीनगर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जम्मू कश्मीर बैंक की खदमत सेंटर एसोसिएशन किस कमीशनस मज कमी तो बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस तकरूरी पे एतराज खड़ा करित आय कमीशनस सत खदमत सेंटर मालिकन हिज आमदनी वारिया मुतासिर सपदनुक राह खालने। तुद वन नवें BCN हिज भर्ती सत सेंटर मजीद मुतासिर सपदनुक खदशे। जमे मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आय एसोसिएशन तरफ हुकूमतस पायदार पॉलिसी हुंद निफाज अमल मज अन्न बापत फूरी मुदाखलत अपील करने। जो आए हैं मुद्दा यही है कि हम पिछले 2009 साल से हम यहाँ लगातार आपके प्रेस क्लब में भी आ रहे हैं, लगातार हम इस चीज़ को डिमांड में ला रहे हैं कि प्लीज़ हमारा सुना जाए और हमारा जो मसला है वो एक बार में ही हल किया जाए। हमारी जो मेन मुद्दा है वो है परमानेंट रिहेबिलिटेशन, क्योंकि जेके बैंक ने ही जेके बैंक के साथ हम जो काम कर रहे हैं पिछले 14 सालों से, वी आर नॉट एबल टू गेट अवर ब्रेड एंड बटर परफेक्टली। तो जो थोड़ा सा कमा रहे थे वो भी उसमें से खत्म किया गया, जो कमीशन आप होनी चाहिए थी वो डाउन हो रही है। और प्लस 2009 से हमें वादा किया गया था कि आपको ऐसा वायबल बनाया जाएगा, आपके अंडर और बंदे काम करेंगे। और तो दूर की बात है सर, हम खुद को ही अब आगे नहीं चला पा रहे हैं। तो अब हुकूमत आई है, अब जो नई हुकूमत आई है, फिर से हुकूमत आई है, अब हम उस चीज़ पे पहुंचे कि जहां हमें दिख रहा है कि नहीं, दिस इज द टाइम वेयर जो हमें सुना जाएगा, क्योंकि ये हुकूमत यूथ ओरिएंटेड है। ये हमेशा दावे करती है कि यूथ के साथ अच्छा किया जाएगा, और वी आर ए यूथ, वी बिलीव हमारा मसला एक बार में ही हल किया जाएगा और हमें परमानेंटली सेटल किया जाएगा, सो दैट कि हमें आगे और ये दुश्वारियां पैदा ना हो और हमें और आगे अपनी फैमिलीज को सफ़र करके करना ना पड़े उनके साथ। तो हम आपकी वसात से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हम उमर अब्दुल्ला साहब से कह रहे हैं कि सर जो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट लाया था, इस प्रोजेक्ट को प्लीज रिवाइव करिए और हमारा मसला हल करिए। क्या आप सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले सेक्रेटरी में? सर हम सेक्रेटरीट में जितने भी एनसी के MLAs है या मिनिस्टर्स है या इवन अपोजिशन के मेंबर्स है, हम सबसे मिले। इवन डिप्टी CM की न्यूज़ भी आई है पेपर में, उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी लीगल होगा वो आपके साथ परफेक्टली किया जाएगा और आपका मसला हल जरूर किया जाएगा। हम यहाँ पे अभी जो आए हैं मुद्दा यही है। नाज़रीन, इस वोत खबरनामे की शुमारान खबरनामे तोह तां वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाला। खबरन सिलसिलो जारी तो रिजो वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू तशी सपदी बे मुलाकात। तोताम इजाजत, खुदा सवाल।